See here question 19. It says an electron emitted by a heating cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine trajectory of the electron. If the field is transverse to its initial velocity. एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसको हमने यहाँ पर एनर्जी दी है. कितनी एनर्जी दी है? दिस इज पासिंग थ्रू 2.0 किलोवोल्ट. तो उससे ये इसमें एनर्जी आएगी और इस एनर्जी से ये आगे शूट आउट होगा और जाकर ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी है. इसकी स्ट्रेंथ है 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला और उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो हम ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा अंदर जाते हुए भी बना सकते हैं. सो हियर लेट्स मेक इट दिस वे. दिस इज डायरेक्शन ऑफ B एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ V. वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज ए चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स and because of that force it will start rotating. वो जो उसके जितने इक्वेशंस हैं वो हमको किससे मिलते हैं? वो हमको एक ही इक्वेशन से मिलते हैं. The centripetal force that is QVB is equal to mv square upon r radius. और हमें इसमें क्या निकालना है? Determine trajectory of the electron. ये जो सर्कुलर मोशन यहाँ पर जाकर ऐसे स्टार्ट करेगा, B के चारों तरफ घूमेगा, उस समय इसका रेडियस कितना होगा? ये रेडियस हमें चाहिए. ओके, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है. दैट विल बी आवर आंसर. सो वी नो अगर ये दोनों एट राइट एंगल है तो ये एक सर्कल बनाएगा और अगर राइट एंगल नहीं है तो ये एक स्पाइरल बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा. ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो उस फर्स्ट पार्ट में ये सर्कल बनाएगा. तो उस सर्कल की ट्रेजेक्ट्री यानी उसका रेडियस हमको बताना है. इट इज़ ए सर्कल विद रेडियस सो एंड सो. ओके, एनीथिंग एल्स इज गिवन? नो. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस रेडियस देन वी हैव दिस रिलेशन r. ये एक v कैंसल हो गया. This r is equal to mass into velocity upon q charge. This charge we can write as charge on electron E multiplied by magnetic field strength B. This. So MVEB. Now we check which are the given quantities. Mass of the electron is known to us as such. Charge on the electron is known to us. B is given 0.15 Tesla. This velocity is not given to us. So we must find something which gives us velocity. तो velocity हमको कहाँ से मिलेगा? Velocity, okay. ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इसके पास वेलोसिटी v है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर. लेकिन क्या ये एनर्जी हमको मालूम है? आंसर है यस. वी नो ए थ्योरम इन मैकेनिक्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज अंडर ए फोर्स, एन ऑब्जेक्ट विच इज अंडर ए फोर्स ड्यू टू दिस, ओके, दिस फोर्स, देन it will have a potential energy. An electron passing through voltage V has potential energy equal to Q into V. Q charge on electron, V voltage. QV is the energy. और इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी कितनी होती है? E into V.
So if a electron of charge E is passing through a potential difference of V, it has energy EV. ये कौन सी energy है? Potential energy. Now this potential energy is equal to kinetic energy. ये हम mechanics में पढ़ चुके हैं. Here it is having the total kinetic energy which was given by this. तो यहाँ से हमको V की वैल्यू मिलेगी and you see V is equal to E into V voltage. This 2 will go here, M will be here, right, and this is V square, EV upon M. 2 EV upon M is V square, so V is equal to this to the power half. This value of V we will place here. So this will be M V upon EB. EB, and in place of this V we will write 2EV upon M to the power half. This. Okay. So this is the value of radius and we can calculate it. Let's put the values here. This is equal to mass. Mass we know it is 9.1 into 10 to the power minus 31 mass, divided by E is 1.6 into 10 to the power minus 19, multiplied by B is given as 0.15 Tesla. 0.15, or let's write it 15 into 10 to the power minus 2. Okay, that is B, again 2 into E. This is to be kept in the bracket. Okay, that we will keep here, and let me write the whole thing again over here. This is 9.1 into 10 to the power minus 31 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied by 15 into 10 to the power minus 2, that is here, then bracket. In the bracket again 2 into E 1.6 into 10 to the power minus 19 into V, voltage. The voltage was 2 kilovolt. So this is 2000. 2 kilovolt divided by mass. Mass is again, mass is 9.1 into 10 to the power minus 31. And this whole thing is to be rooted, that is, we find the square root of this. Okay, now it's a lot of mathematics. Do all this with help of a calculator and we find it comes to be 100.55 multiplied by 10 to the power minus 5. And this is radius. It comes into SI system. Because it is in SI system, this will have meter. Now we can conveniently convert it into millimeter by multiplying with 10 to the power 3. So this will remain 10 to the power minus 2 and this minus 2 will make it here. So this is 1.005. So make it roundabout. So this is only 1 millimeter. That's all. 1.0 millimeter you can say. Yes. 1.0 millimeter is radius. So we got this radius here
this will make a rotation like this, and this radius is 1 millimeter. At the same place, it will not come here, at the same place here. This is part A of this, 1 millimeter. Now, they say in the second case, magnetic field B makes an angle 30 degree with this velocity. It is set in such a way that they two are making 30 degree. So let us change it. If this is velocity, then here magnetic field is in this direction, B magnetic field, and this angle is 30. So which component in this case, what will be our formula? So formula here will be Q V cross B. So when we say V cross B, it is VB sin theta in magnitude. तो उसमें sin theta एक और आ जाएगा here. So in the radius, in place of V, we will get V sin theta. This is velocity, and magnetic field is making 30 degree in any direction. This 30 degree. So what we have to take? That component of velocity which is perpendicular to magnetic field. देखिए यहाँ पर क्या था? Initially जो हमने लिया था, that was B here and V here. See the first part. The magnetic field is perpendicular to initial velocity, 90 degree. तो velocity को कैसा रहना चाहिए? At right angle to magnetic field. वो वाला component हमको चाहिए which is at right angle to magnetic field. अब यहाँ पर हमने इसको कर दिया है, ये magnetic field is at 30. तो हमें V के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट ये V का इस तरफ हुआ और एक कंपोनेंट इस तरफ हुआ, ये दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट V cos थीटा और ये कंपोनेंट V sin थीटा. तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? तो हमें उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिस वन V sin थीटा. इसलिए इसमें V sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा. एंड नाउ वी गेट अगेन सेम क्वेश्चन वी आर डूइंग, एंड दिस विल बी रेडियस इज इक्वल टू m V sin थीटा अपॉन EB. EB ये वही स्टेप है जो उसमें आया था, और अब V की जगह हमने क्या रखना है? रूट ऑफ 2EV इज इक्वल टू m अपॉन EB, और ये साइन थीटा ऐसा ही रहेगा, और V की जगह हमने क्या रखा था? रूट ऑफ 2EV अपॉन m. EV अपॉन m. ये सो m अपॉन EB रूट 2EV अपॉन m, इनकी वैल्यू रख के हमें क्या मिला था? 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री. MV, यहाँ पर V और आएगा, राइट, ठीक है. तो MV अपॉन EB रूट 2EV, ये हमने यहाँ किया था. दिस R इज इक्वल टू M EB, M अपॉन EB, V की जगह ये रखा, और इससे हमको वैल्यू क्या मिली थी? 1 मिलीमीटर. वही चीज़ हमने यहाँ भी ली है. ओके, V नहीं लिखना है क्योंकि V की जगह हमने इसको लिखा है. ओके, सो 1 मिलीमीटर इंटू ये साइन 30 एक्स्ट्रा आ गया, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ. सो दिस इज 1 इंटू हाफ, दैट इज 0.5
मिलीमीटर। ये आ गया रेडियस। अब हमें पता है कि इसका पाथ होगा कैसे, तो आंसर है इसका पाथ हेलिकल होगा। दिस विल गो लाइक मेकिंग सर्कल दिस वे। इस तरह से ये क्या बनाएगा, हेलिक्स। सो इलेक्ट्रॉन विल मेक ए हेलिक्स। आगे क्यों बढ़ रहा है, v cos थीटा के कारण। गोल क्यों घूम रहा है, v sin थीटा के कारण। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विल मेक ए हेलिक्स। with radius 0.5 millimeter. So this is how we can make it. अगर इससे हमें पूछा जाता कि इस हेलिक्स का पिच निकालिए, तो हम इसके सर्कल का एक टाइम पीरियड निकालते और उस टाइम पीरियड से v cos थीटा को मल्टीप्लाई करके इसका पिच भी निकाल सकते थे. That we have done when we were studying its concepts. Okay, so this is how it will be made. And now we go to the next question, 4.20. See question number 20 here. It says that at a location there are two fields, electric field and magnetic field, which are at right angle to each other. And a charged particle enters from the third direction. Electric field, or say magnetic field and electric field. They are at right angle to each other and a charged particle enters this way. अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको ऐसे घूमना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इसको ऐसे घूमना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है ऐसे घूमने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा सेट किया है कि ये फोर्स लगाता है ऐसे घूमने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और होता क्या है, जो क्वेश्चन में लिखा है इट गोज अनडेविएटेड, वो सीधा चला जाता है। तो अगर ये सीधा चला गया है तो हमको एक इक्वेशन मिलता है। क्या इक्वेशन मिलता है, इफ द चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, दैट इज EVB, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स उस पर लगेगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें हमको ये कैंसलेशन हो गया एंड व्हाट वी गेट इज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इक्वेशन हमने पहले बनाया हुआ है कंसेप्ट में भी। If it goes undeviated in this particular situation, then velocity should be equal to this. ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है make a simple guess as to what the beam contain. अब बीम में पार्टिकल कौन सा है इसको कैसे पता लगाना, तो इसका आंसर है, देखिए अगर एक पार्टिकल की पहचान करनी है तो हम उसके E/m रेशियो से कर सकते हैं। E/m इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि हर एक का एक ही जैसा हो, ऐसे भी पार्टिकल हो सकते हैं जिसका E/m एक जैसा होगा, लेकिन हम सब पार्टिकल्स के E/m की वैल्यू जानते हैं, लैब में हमने करके देखा हुआ है। तो ये अगर अननोन पार्टिकल है तो इसका E/m कैलकुलेट करेंगे गिवन डाटा से और उस लिस्ट से मैच कर लेंगे, जिसके साथ वो मैच करता है इट इज़ दैट पार्टिकल। इस तरह से उसको पहचान लेंगे। तो हमारा अब आगे पर्पज़ है E/m की वैल्यू निकालना। तो E/m की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, चार्ज अपॉन मास, ये हमें चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है कुछ चीज़ें हमको दी हैं और कुछ हमको निकालनी हैं। तो देखिए इसमें एनर्जी के बारे में दिया है
ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप हेल्महोल्ट्ज इज यूनिफॉर्म स्मॉल रीजन मैग्नीट्यूड 0.75 टेस्ला, ये भी दिया है। ओके, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक तरीका निकाला था कि वेलोसिटी किस तरह से निकलती है। इसमें दिया है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेशन में इसकी वेलोसिटी आती है, उस वेलोसिटी से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, और ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहाँ से आई है? पोटेंशियल एनर्जी से, विच इज ईवी। ये किसका इक्वेशन है? एनर्जी इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को QV, इस पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी मिली QV, और ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, याद रखिए। इससे हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है 2QV डिवाइडेड बाय m, इसका स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो इसमें हमको Q/m मिलेगा। ओके, देन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी वैल्यू दी है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो V की वैल्यू हमने यहाँ से रखी। हमें क्या निकालना है? E/m, दैट इज चार्ज अपॉन मास। इसे हम E/m भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसे Q/m भी लिख सकते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो अगर हम E/m लिखना चाहते हैं तो इस Q को यहाँ पर E कर देते हैं। दोनों में मतलब याद रखिएगा, वन एंड द सेम थिंग, electric charge on the particle. Okay, so here we have 2 EV voltage. How much was the voltage here? It is passing through 15,000 volt, 15 kV, 15,000 volt divided by mass m. Okay, half, this is V. Okay, this V is equal to electric field, and electric field is given as 9 into 10 to the power minus 5 volt per meter, that is already in SI system. This is to be divided by magnetic field, and magnetic field is given to be 0.75 Tesla. 0.75, we can write it 75 into 10 to the power minus 2 Tesla. Okay, SI system. Now in this, what is unknown to us? E/m. Yeah. Mathematical process, you know. First we will make square of both the sides. दोनों साइड का स्क्वायर करिए, ये हट जाएगा। उसके बाद E एंड M को यहाँ छोड़कर इन दोनों को इस तरफ ट्रांसफ़र करिए और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू ऑफ E/m, दिस कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू 10 to the power 7, और इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम पर केजी। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, मास पर केजी। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी। अब हम चेक करते हैं अपने चार्ट से कि ये वाला चार्ज किसका होता है। तो ये वाला हमको मिलता है चार्ज, दिस इज ऑन ड्यूटेरॉन और ड्यूटेरियम। और यही फिगर हमको मिलता है ये He++ और
Li प्लस प्लस, ये तो ये जो E अपॉन m की वैल्यू आई, दिस वी फाइंड इन सो मेनी पार्टिकल्स. सो हमने पहचान लिया इसमें से कोई पार्टिकल है, दैट इज अवर आंसर. और दूसरा आंसर, दूसरा पार्ट क्या है? इट इज नॉट यूनिक, मतलब एक वैल्यू नहीं है, एक पार्टिकल नहीं है. इट मे बी आइदर ऑफ दिस पार्टिकल, इसमें से जो भी पार्टिकल जाएगा उसका रिजल्ट यही आने वाला है. ओके, सो अगेन द चार्ज इज गोइंग अनडेविएटेड. ये पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो, चार्ज अनडेविएटेड ही जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका E अपॉन m का वैल्यू इतना है. उस E अपॉन m के वैल्यू से ये इक्वेशन हमारा सेट हो जाता है. तो इसमें हमको क्या क्या याद करना है? जब भी कोई पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है. दूसरा, एनर्जी और वेलोसिटी, इसके रिलेशन में आपने देखा बार बार आया है. यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. कोई भी चार्ज पार्टिकल V वोल्टेज से एक्सेलरेट होगा, एक्साइट होगा, तो उसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और ये कन्वर्ट होके ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, इससे वोल्टेज और वेलोसिटी इनका आपस में रिलेशन मिलता है. सो ये दोनों पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल में बार बार काम आएंगे. सो दिस वी मस्ट रिमेंबर. सो दिस वाज 20 एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4.21. A straight horizontal conducting rod. This is a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter. Okay, and mass 60 gram. Is suspended by two vertical wires at the ends. These two vertical wires. A current of 5.0 ampere is set up in the rod through the wires. इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं and that current is given as 5.0 ampere. ओके, ये छत से लटका हुआ है. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that tension in the wire is zero? टेंशन इन द वायर. तो सबसे पहले इसमें टेंशन क्यों आएगा? टेंशन इसलिए आता है क्योंकि कोई अपोजिट फोर्स लगता है और इस पर हमको दिख रहा है अपोजिट फोर्स कौन है? वेट mg. ये फोर्स नीचे लगेगा, उसके कारण ये रॉड नीचे गिरना चाहती है. इन दोनों में टेंशन डेवलप होगा. ये टेंशन, इक्वल टेंशन दोनों में डेवलप हुआ और उस टेंशन ने इसको नलिफाई कर दिया, इसको संभाल लिया और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलता है, दिस 2t इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी mg. ओके, सो इससे हमें टेंशन की वैल्यू मिलती है, दैट टेंशन इज इक्वल टू mg. अब इनका ये कहना है कि ये टेंशन ज़ीरो हो जाएगा. क्या करेंगे? अगर हम इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें. क्यों ज़ीरो हो जाएगा? इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसकी डायरेक्शन इस तरह से चूज करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, सपोज ये प्लस है और ये करंट फ्लो हो रही है दिस वे आई. अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हमें चाहिए फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाना होगा? गोइंग इनसाइड. सो वी पुट ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड this. Now if magnetic field is going inside, this is direction of current, this is the force acting upward, this force.
और ये फोर्स कितना होता है, ये फोर्स अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, इसकी लेंथ L है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है BIL, ये फोर्स ऊपर। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स ऊपर इस फोर्स के बराबर हो जाए तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, एंड व्हाट विल बी द नेट फोर्स, जीरो। तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा। सो फॉर T टू बी ज़ीरो, अगर T को हमें ज़ीरो करना है तो क्या होना चाहिए, F मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू वेट of the body, and F magnetic is equal to BIL, and this is equal to weight of the body, that is mg. ये okay. Now अब इसमें क्या पूछा गया है, how much magnetic field is to be applied, how much magnetic field means B की वैल्यू हमें चाहिए, तो बाकी सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सो B इज इक्वल टू mg अपॉन I इंटू L, M इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, G इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 5, लेंथ ऑफ द वायर 0.45, 0.45 this. Okay, so this is our calculation and that gives us the value of B. इसमें हम calculation करते हैं और B की value निकालते हैं, and this value comes out to be 0.26 Tesla. 0.26 Tesla. आप calculation करके देख लीजिए, it will come to that. ओके करेंगे, आ जाएगा। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पोर्शन देखिए, दैट सेज व्हाट विल बी टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। अभी ये डायरेक्शन इधर है, चूंकि ये डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बी इनसाइड, बी इनसाइड, ये तो फोर्स ऊपर लग रहा है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे देन दिस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, और फोर्स कहाँ हो जाएगा, नीचे, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस सेकंड केस में फिर क्या होगा, सेकंड केस में ये वेट नीचे काम कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे काम करेगा, F मैग्नेटिक ये भी नीचे काम करेगा, BIL, तो दोनों नीचे काम करेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू दिस टेंशन। तो ये टेंशन 2T जो कि पहले सिर्फ mg के बराबर था विदाउट करंट, अब ये 2T किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण क्या पैदा हुआ, BIL। पहले जब सिर्फ mg था तो BIL किसके बराबर था, इक्वल टू वेट, और ये वेट कितना है, ये वेट है हमको पता है 60 ग्राम, तो ये 60 है और ये कितना है, ये भी 60 है क्योंकि ये इसके बराबर ही था। सो दिस विल बी 60 इंटू 10 टू द पावर -3, this is m into g plus the same repetition there, तो ये हो गया 10 to the power 0.6, so this will be again 0.6, so this comes out to be 2T is equal to this into this, so 1T is equal to this, that is 0.6.
हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेसिकली दो टेंशन मिला के ये दो फोर्स हो रहे हैं और दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है। दो टेंशन, तो एक सिंगल टेंशन किसके बराबर हुआ? इसका हाफ, और हाफ कितना है? mg, और mg कितना है? 60 ग्राम इंटू g, दैट इज 0.6 न्यूटन t। सो ये आ गया, टेंशन ऑन ईच वायर विल बी 0.6 न्यूटन when the current is flowing in the opposite direction. So this is how we make it 4.21. Now we go to the next question, 22. Question number 22. The wires which connect battery of automobile to its starting motor. ये starting motor है और ये दो वायर इससे कनेक्ट होते हैं जो बैटरी से जाते हैं। तो एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि जब यहाँ से बैटरी से हम इसमें कनेक्शन करेंगे तो ये करंट ऐसी जाएगी और मोटर में से होके ऐसी वापस आएगी। तो ये जो लीड वायर है, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? तो आंसर है ये एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी पैरेलल। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है इन दोनों के बीच, दिस इज ए सेट ऑफ पैरेलल वायर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग, सो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक ही डायरेक्शन होती तो अट्रैक्शन होता है और अपोजिट होते हैं तो रिपल्शन होता है। तो एक आंसर आ गया कि ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। दूसरा, ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है। दिस इज फॉर्मूला इज 2I1I2L अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। I1 I2 इन दोनों की करंट है, L लेंथ है और R दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें से रख देते हैं। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। करंट ऑफ 300 एम्पियर्स, अगर इसमें से 300 एम्पियर जाती है तो इसमें से वापस आएगी वो भी 300 एम्पियर होगा, क्योंकि ये एक सिंगल लूप है और सिंगल लूप में वैल्यू नहीं बदलेगी। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 to the power minus 7 multiplied by 2 multiplied by I into I, 300 into 300 multiplied by L, the length. Is it given? Yes. What is the force per unit length? ओ फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर चाहिए तो इस L की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हम लिख चुके हैं, इसकी वैल्यू लिख चुके हैं R। R is the normal distance between them and that is given 1.5 centimeter, 1.5 into 10 to the power minus 2 meter. So this is our answer for it, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे this will come out to be 1.2 न्यूटन। इसको अगर आप इधर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा फोर्स पर मीटर, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑन 1 मीटर। सो 1.2 न्यूटन पर मीटर इज द फोर्स ऑन इट। और इसकी प्रॉपर्टी हम पहले ही लिख चुके हैं, ये कैसा फोर्स है? रिपल्शन का फोर्स है। सो दिस इज 22 एंड नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन ए सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल रीजन है
ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस इसका 10 है, 10। ओके, ये इसकी एक्सिस है। 1.5 टेस्ला पैरेलल टू एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। बी इधर डायरेक्शन है ईस्ट और इधर डायरेक्शन है वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू है 1.5 टेस्ला। These are the given things. A wire carrying 7 ampere in north to south, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उसमें हमने इस वायर को रखा। तो उस वायर को मैं यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ। करंट कैसी फ्लो हो रही है? 7 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। तो अगर इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो करंट ऐसी आएगी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आने वाली करंट को हम डॉट से दिखा सकते हैं। ये करंट ऐसे आ रही। ओके, ये कौन सा डायरेक्शन है? अप। ये कौन सा डायरेक्शन है? डाउन। ये कौन सा है? ईस्ट। ये कौन सा है? वेस्ट। पीछे कौन सा है? नॉर्थ। सामने कौन सा है? साउथ। तो दिस करंट इज फ्लोइंग इन इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, एंड दिस इज 7 एम्पियर। 7 एम्पियर ये इसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, सो दिस इज द डाटा गिवन इन इट। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ देयर आर 3 कंडीशंस। द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस। यहाँ पर वायर है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है। दूसरा, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले फर्स्ट लेते हैं कि ये ऐसे फ्लो हो रही है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन लेंथ L in magnetic field B, then it is BIL. Here BIL sin theta. यहाँ पर sin theta क्या है? Theta is magnetic field and length. इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, so this will be sin 90. B की वैल्यू 1.5, I की वैल्यू 7 और L की वैल्यू यदि हम इसे साइड से देखें, ये वाली वायर ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई और वायर ऐसी है। तो इसका हमको रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 20। ये हमको क्या मिल गई? लेंथ ऑफ द वायर। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सो वी राइट इट 20. This is BIL sin theta. This becomes 1. So this is 7 into 1.5 into 20 into -2 and ये सब करके देख लीजिए। This is 20 into 1.5 is 30 into 7 into 10 to the power -2, 2.10 न्यूटन। ये इसका आंसर आया 2.10 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड को सेट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड रखना है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसको ऐसा किया। करंट किधर फ्लो हो रही है? बाहर की तरफ, तो इसको बाहर कर दिया।
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो ये क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये केस 1। केस 2, इसमें इस वायर को हमने टिल्ट कर दिया, जो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट से घुमाकर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कर दिया। तो ये जो वायर है अब यहाँ पर ऐसी हो गई, डायरेक्शन चेंज करके इस तरह से। ये सेकंड केस है। सेकंड पार्ट, ओके। जब इस वायर को हम ऐसा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स पे, क्यों? क्योंकि हमको इसकी लेंथ का वो पोर्शन चाहिए जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये। और यहाँ से हमने प्रोजेक्शन किया, इट कम्स टू सेम। ये यहाँ पर कितना था, 20 सेंटीमीटर, तो अभी भी ये कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसके अंदर पहले इतना वायर हमने डाला हुआ था, अब डाला तो इतना बड़ा चला गया, लेकिन प्रोजेक्शन तो उतना ही है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो पहले लेंथ इसमें सिर्फ इतनी थी 20 सेंटीमीटर, जब हमने इसको ऐसा घुमाया तो ज़्यादा बड़ी लेंथ आ गई, लेकिन फोर्स सिर्फ किस पर लगेगा, इस प्रोजेक्शन पर लगेगा। सो total length in B increase, but इंक्रीज कितना इंक्रीज हो जाएगा? अगर आप निकालना चाहेंगे कि ये वाला पोर्शन जो कि इसके परपेंडिकुलर पहले ये था 2r के बराबर था, तो ये इतना लंबा हो गया ये, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ इज इक्वल टू 2r divided by sin 45. So this is 2r. Therefore force BIL sin theta is again 1.5 into current 7 ampere. L sin थीटा, L कितना है, 2r से बढ़ गया 2r अपॉन साइन 45, 2r अपॉन साइन 45 इंटू साइन 45, ये कैंसल हो गया, एंड व्हाट वी गेट इज अगेन 2r, और 2r की वैल्यू से हमने इसे पहले निकाला हुआ है, 2r की वैल्यू से दिस कम्स टू अगेन हाउ मच, 2.10। तो इसके अंदर तार को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तार जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो तो उतना ही रहेगा। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। अब इसका थर्ड पोर्शन देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए, पहले जो ऐसा बनाया था उसको आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये वायर है हमारी इसके परपेंडिकुलर। तो पहले ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ये वेस्ट डायरेक्शन थी, और ये वायर किधर थी, नॉर्थ टू साउथ। अब हमने इसको घुमाया तो ये वायर ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, लेकिन ये इतना बड़ा पोर्शन अभी भी इसका प्रोजेक्शन इतना ही बड़ा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है। सो देयर विल बी नो डिफरेंस, आप जैसा भी घुमाइए, इस एंड से लेके इस एंड तक वायर रहनी चाहिए। और मैथमेटिकली करेंगे तो इसकी पहले लेंथ निकालो, फिर इसका ये कंपोनेंट निकालो, यही आ जाएगा वापस जो यहाँ पर आ गया वापस। ओके, सो दिस वाज पार्ट 2। नाउ पार्ट 3,
That says if we are taking this wire down, जब इस वायर को हम नीचे लाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, जब इस वायर को नीचे लाते हैं तो ये किस तरह से काम करेगी. ये सिलिंड्रिकल, अब हम इस सिलेंडर को ऐसे साइड से देख रहे हैं, ऐसे भी रख के देखा था, अब ऐसा देख रहे हैं. ओके, इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, सो वी राइट इट दिस वे. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है, दिस इज 1.5 टेस्ला. अब वायर कहाँ है? तो इनका ये कहना है कि उस वायर को, ये पहले इसकी डायमेंशन देखिए, ये कितना था 10 रेडियस, तो 10 ऊपर और 10 नीचे. ये पहले हमने कंडक्टर कहाँ रखा था? पहले हमने कंडक्टर यहाँ रखा था, ये, तो इसकी लेंथ हमको 20 मिल रही थी. अब हमने इससे 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, ये 6, और अब ये यहाँ पर आ गया कंडक्टर. किस चीज़ का डिफरेंस पड़ा? तो आंसर है हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला है BIL sin थीटा. तो ये जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में, पहले ये लेंथ कितनी थी 20, अभी ये लेंथ इतनी छोटी हो गई. थीटा तो पहले भी 90 था, अभी भी 90 है, तो लेंथ छोटी हो गई. नाउ देयर विल बी डिफरेंस ऑफ द फोर्स. अब फोर्स का डिफरेंस आएगा. यहीं पर ही अगर हम घुमा देते तो कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर 20 ही रहती, 20, ये यहाँ से लेके यहाँ तक. अब हमको निकालना है कि अगर हम इससे 6 नीचे आ जाएंगे तो ये वाली लेंथ कितनी, ये हमें निकालना है. ओके, तो इसमें हमको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी एंड वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. इसका रेडियस हर लोकेशन पे 10 सेंटीमीटर है, ये 6 है, और हमें ये लेंथ चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. इसको निकालने के लिए हम यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं, ये, और ये रेडियस है, इसलिए ये 10 है, ये 6 है. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप इसको बना सकते हैं. 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 64, और 64 का स्क्वायर रूट 8. तो ये लेंथ है 8, ये लेंथ है 8, दोनों मिला के हो गई 16 सेंटीमीटर. नाउ हियर वी हैव B की वैल्यू हमको पता है, I की वैल्यू हमें पता है. यू सी हियर B 1.5, I is 7. This is 1.5 टेस्ला, I is 7 एम्पियर. और लेंथ अभी हमने कितनी लेनी है? लेंथ 8 and 8 16 सेंटीमीटर, -2 मीटर बन गया. और थीटा अभी भी कितना है 90, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1. उसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द फोर्स व्हाट वी गेट हियर. ओके, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज 16 24 इंटू 7 इंटू 10 माइनस 2, this 1.68 न्यूटन. दिस इज द फोर्स. तो पहले आप देख रहे हैं फोर्स 2.10 था जब ये फुल वायर इसके अंदर थी. अब इस वायर की लेंथ कम हो गई, और जब हमने इसको नीचे खींचा तो इतनी वायर बाहर चली गई, ये सिर्फ इतनी इसके अंदर रह गई, क्योंकि 6 सेंटीमीटर नीचे आ गई. तो लेंथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड छोटी हो गई. लेंथ छोटी हो गई, इसके कारण से इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया. सो नाउ वी गेट 1.68 मैग्नेटिक फोर्स. थैंक यू.